پیار کا سبق لے کر میرے مصطفیٰ۔ موجودہ حالات میں مسلمان ہرگز مایوس نہ ہوں، پست ہمت نہ ہوں، نیگیٹو سوچ میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ مذہب اسلام کے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے ملک اور ملت کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہر میدان میں آگے آئیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی پہلی وحی اقرا ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے ہے۔ اس وحی سے ایجوکیشن کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تعلیم ہو، تجارت ہو، ازدواجی زندگی ہو، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے میں محمد عبید اللہ شریف، سید اشرف اور آغا سلطان نے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بنگلور کے شیواجی نگر میں الامین کمبل پوش اسکول میں نعت اکیڈمی کرناٹکا کے تحت جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ نعت اکیڈمی کرناٹکا کے صدر مبین منور کی صدارت اور معروف شاعر شفیق عابدی کی نظامت میں ہوئے اس جلسے کا مقصد بچوں میں حمد نعت قرات کے مقابلے منعقد کرتے ہوئے نوجوان نسل کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کروانا تھا۔ اس موقع پر مسجد بسم اللہ شاہ کے خطیب و امام مولانا محمد مظفر عمری نے اپنے کلیدی خطاب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بچوں اور والدین کے لیے کافی قیمتی باتیں کہیں۔ مشہور ایجوکیشنسٹ آغا سلطان نے یہ بات کہی کہ دنیا کی پہلی یونیورسٹی ماں کی گود ہے۔ نعت اکیڈمی کرناٹکا کے سرپرست سید اشرف نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کے صدر محمد عبید اللہ شریف نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کی پرورش میں غفلت نہ برتیں۔ ماں باپ کے بیہیویئر کا اثر، عادات و اطوار کا اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ اس طرح اس جلسے میں تمام مہمانوں نے فکر انگیز بیانات پیش کیے۔ الامین کمبل پوش اسکول کے پرنسپل غلام مصطفیٰ خان نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ حکومت کی جانب سے بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ حاصل کرنے والی الامین کمبل پوش اسکول کی انگلش ٹیچر نتیا کو تہنیت پیش کی گئی، فیلیسیٹیٹ کیا گیا۔ اشرف صاحب کی جانب سے ایک جو ہے چھوٹا سا جو ہے گفٹ دیا جا رہا ہے، کیش پرائز دیا جا رہا ہے سید اشرف صاحب کی طرف سے۔ ادبی مقابلوں میں حصہ لینے والے اسٹوڈنٹس کو انعامات و سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے سیکریٹری ریاض احمد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ صدائے ہند یوٹیوب چینل کے ایڈیٹر مولانا امتیاز اللہ خان کاشفی کی دعاؤں کے ساتھ یہ نورانی محفل اختتام پذیر ہوئی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالی ذات کی بدولت ان کے صدقے سے پہلے منعقد کیا گیا ہے۔ پروردگار جن لوگوں نے آج کے جلسے کو منعقد کیا ہے، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ ان کی ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے پہلی آیت جو آئی اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، پڑھو، ریڈ ان the name of their Lord۔ جب پہلا ہی ورس پڑھو کر کے آتا ہے تو ہمارا فرض ہوتا ہے پڑھنا اور پڑھانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری اگر آپ جان لیے تو میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا سبق آپ کو حاصل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے بچوں،
I like to draw your attention. सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या है बताइए? सबसे पहली और सबसे बड़ी, कोई बोल सकता है? सबसे पहली और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या होती है? सॉरी, सबसे पहली जब आप पैदा होते हैं, मां की गोद, मां, आई ऑलवेज कंसिडर कि मां सबसे बड़ी पहली यूनिवर्सिटी है। तो जैसा अशरफ साहब ने कहा कि आप माँ बाप बच्चों को तालीम दें, खासकर तहारत में। नमाज क्यों वाजिब है? नमाज इसलिए वाजिब है कि आप 100% तहारत में रहते हैं, गुनाह नहीं करते, गुनाह नहीं करते जो नमाजी है। इसलिए नमाज का उतना इंपॉर्टेंस है। जब आप नमाजी बन जाएंगे तो आई एम श्योर कैरेक्टर जो है ना, सबसे बड़ी चीज है कैरेक्टर। आप पढ़ेंगे, फर्स्ट रैंक लेंगे, ऊपर जाएंगे। जब आपका कैरेक्टर सही नहीं है तो सब बेकार है। तो माय डियर चिल्ड्रन, सुनिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिल्ड योर कैरेक्टर। अब कैरेक्टर कैसा बिल्ड होता है? अच्छे सोहबत के साथ, गुड कंपनी। और ये भी होता है जब एक अच्छा बच्चा पढ़ने के आता है तो थोड़े लोग वॉच करते हैं, वो खराब करने की कोशिश करते हैं। मुझसे बच के रहो आप। बी केयरफुल ऑफ दोज who try to spoil you. Do not cultivate bad habits. First and foremost, respect your parents. अब उसके बाद बड़े होकर यहाँ आते हैं, respect your teachers. और यहाँ टीचर्स हैं तो मैं ये एक गुजारिश टीचर्स के लिए बोलना चाहता हूँ, मेहरबानी से, I don't believe in beating a child. I don't believe in using a stick and hitting a child. Please, if anybody is doing it, stop it. मारने से इंसान बदलता नहीं है, वो और हट आती है, स्टबर्ननेस आती है उसको, और स्टबर्ननेस आता और बिगड़ जाएगा वो। प्यार से बोलिए, प्यार। अगर वो नहीं सुना तो पेरेंट्स को बुलाइए, काउंसलिंग कीजिए आप। और डू नॉट निग्लेक्ट टीचर्स, डू नॉट निग्लेक्ट जो भी अच्छा नहीं पढ़ रहा है उसको निग्लेक्ट मत कीजिए और कंपैरिजन मत कीजिए। ये मत बोलिए कि देखो ये अच्छा पढ़ रहा है, ये अच्छा नहीं पढ़ रहा है। द स्टूडेंट डजंट लाइक टू बी कंपेयर्ड, ये स्टूडेंट साइकोलॉजी है। मत कंपेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रहा एजुकेशन, दीन एंड दुनिया दो भी इंपॉर्टेंट है। दुनियाई एजुकेशन और दीनी एजुकेशन, दीन और दुनियाई एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आज जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है आप सबको मालूम है, और बच्चों को भी अभी से मालूम होना चाहिए कि हम लोगों पर यानी कि मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। हमारे मसाजिदों पर जुल्म ढाया जा रहा है, हमारे घरों पर बुलडोजरों से हमले किए जा रहे हैं। ये कोई आम आदमी नहीं कर रहा है, बल्कि हुकूमतें करवा रही हैं और कर रही हैं, और हम खामोश बैठे हैं। हम खामोश बैठकर कब तक तमाशाई बनते रहें? हम मायूस क्यों हैं जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं? तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग जो है ना बाहर जाके गड़बड़ मचाओ या गड़बड़ करो।
मार तोड़ करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले हम लोगों को, यहां तक ये बच्चों को मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्शो कदम पर चलने की हम लोगों को आदत डालना है। उनके सिखाए हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करना चाहिए और इस्लाम की रस्सी को बिल्कुल मजबूती से जब तक हम थामेंगे नहीं, हम इसी तरह से पिटते रहेंगे। इस्लाम ने आपको एक रास्ता दिखाया है, हर एक इंसान को जो है ना किस तरह से रहना है, इस दुनिया में किस तरह से जिंदगी बसर करना है और बड़ों के साथ किस तरह से पेश आना है और बच्चों के साथ किस तरह से रहना है, ये सब हम लोगों को इस्लाम ने सिखाया है। आज हम इस्लाम को छोड़ दिए हैं। मैं देखता हूं जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब आता है तो हमारे लोग जो है ना फौरन अपनी आंखों पर बोसा देने लगते हैं और मचल जाते हैं। जब हुजूर के अहकामात को सुनाया जाता है तो पलट जाते हैं। आज हमारे लोगों की यह हालत हो गई, इसलिए हम आज जो है ना परेशान हैं। अगर अब हम संभलेंगे नहीं तो आगे चलकर हमारे लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम मजहब के नाम पर मजहब को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को अपनाएंगे नहीं और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले अल्लाह के अहकामात की तामील करना चाहिए हम लोगों को। जब तक हम नमाजी नहीं बनेंगे तब तक हम जो है ना कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी का राज जो है ना नमाज से शुरू होता है। कामयाबी जो है ना जब आपको मिलती है तो शुरुआत नमाज से मिलती है। आपको बचपन से ही नमाज को अपनाइए और वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को नमाज की आदत डालिएगा। बच्चों को फजर की नमाज की आदत डालिएगा, ज़ोहर की नमाज की आदत डालिएगा, असर और मगरिब की नमाजों की आदत डालिएगा, ईशा की नमाज की आदत डालिएगा, तो आपके बच्चे कामयाब हो जाएंगे। अगर आप इनकी तरबियत नहीं करेंगे तो कल आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि माशरा इतना खराब होता जा रहा है। बाहर जो है ना मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। ये जुल्म इसलिए ढाया जा रहा है, हम कमजोर हैं इसलिए नहीं है, हम ईमान की दौलत से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है उस पर हम चलने की कोशिश करेंगे तो ये जितने भी हमारे ऊपर मुश्किलात आ रहे हैं वो सब जो है ना अल्लाह ताला अपने रहम करम से इसका हल फरमा देगा। इसका आप लोग ख्याल रखें और आज से ही जो है ना हुजूर के रास्ते दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें और दुनिया से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के सिवा आपको किसी से डरना नहीं है। मुसलमान जो है ना किसी से डरता नहीं है, तारीख गवाह है। आप वो तारीख पढ़ने की कोशिश करिएगा, उसको दोहराइएगा। जब तक आप उसको दोहराएंगे नहीं आप कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। जिस दिन आप हिम्मत वाले हो जाएंगे, जिस दिन आप इस्लाम की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको सही रास्ता दिखाकर अपनी आपको उसकी सही आपकी सही मंजिलों तक पहुंचा देगा। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की इबादत करें, हम करते हैं। अगर कोई, हमारे अशरफ साहब ने कहा कि जब हुजूर का नाम लिया जाता है तो लोग जो है काफी लोग चूम लेते हैं, लेकिन हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चलने का जब सवाल आता है हम मुकर जाते हैं।
हुजूर ने सारी दुनिया के लिए ये पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया कि हम इस दुनिया में खास कर मुसलमानों को जो एक अल्लाह और एक रसूल पे जो है हम यकीन रखते हैं, उनको बताया कि हम तिजारत किस तरीके से करना चाहिए, हम अपने पड़ोसियों के साथ किस तरीके से रहना चाहिए। मर्द को बताया कि अपनी बीवी के साथ कैसा रहना चाहिए, औरत को बताया कि मर्द के साथ और अपने बच्चों के साथ कैसा रहना चाहिए, अपने वालिदैन के साथ क्या सलूक करना चाहिए, और वालिदैन को बताया कि अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। औरत के तलवे के नीचे जन्नत है। आगा सुल्तान साहब ने कहा कि औरत जो है बच्चों के लिए सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, सबसे पहला स्कूल है। क्या करें, मजबूरी है आजकल। ये यूनिवर्सिटी जो है बच्चे को गोद में लगकर टीवी देखते रहते, बड़ा होकर बच्चा भी वॉच करता है। और ये यूनिवर्सिटी जैसा कि उन्होंने कहा, बच्चा गोद में रहता है या बच्चे घर में रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, वो बच्चा देखता है कि उसकी माँ अपने बाप के साथ कैसा सलूक करती है, या बाप माँ के साथ कैसा सलूक करता है, या दोनों जो है उनके बुजुर्गों के साथ कैसा सलूक करते हैं, तो बच्चे वही सीखते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, जैसा कि बहुत अच्छी बात आगा सुल्तान साहब ने कही कि आप अपने बच्चों के सामने अपने छोटे बड़े कोई भी झगड़े, आजकल माशाअल्लाह बहुत अच्छा बात करती है हमारे, उससे में आगे औरत जो है मर्द को छड़ा होती है, मर्द भी होता है। तो मर्द या औरत जो है, माँ बाप जो जबान इस्तेमाल करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तुम्हें घर में है ना वो सिखा, कोई स्कूल की भेजा, कोई स्कूल में कहती हूँ बच्चा नहीं बोलना, तो कहां से सीखता है बच्चा? और यहाँ उस्ताद कहती है बोले तो बच्चा क्या बोलता है, हमारे घर में हमारा अम्मा बाबा ये सिखाए दो। तो सबसे पहले जो है आपको सीखना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए कि आप बच्चों के सामने और बच्चों के साथ कैसा सलूक करें। कलाम पाक में फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद व बाला कर दिया। अब आप और हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके जिक्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद कर दिया, उसका जिक्र हम क्या बुलंद कर सकते हैं। हम तो एक गुलामों के गुलाम हैं। ये हमारी मोहब्बत का एक हक अदा कर रहे हैं कि हम आपकी उम्मत में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसका जिक्र बुलंद कर सकता है, हमारी और आपकी जबान में, हमारे और आपके कल्ब में इतनी ताकत कहां से आएगी कि हम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कुछ अल्फाज कह सके। मगर ये हम पर फर्ज बनता है कि हम हर वक्त हर पल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चले, उनके शुक्रगुजार रहें। हम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हुए, ये सबसे बड़ा हमारा। अल्लाह ने सबसे पहले तो हमें अशरफुल मखलूकात बनाकर पैदा किया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये अता करदा हमें इनाम है। अब उसके बाद जब हमको आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बना दिया, तो वो सोने पे सुहागा। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर जितने भी मुरसल जितने भी दुनिया में तशरीफ लाए, सबकी यही ख्वाहिश थी कि वो आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर पैदा हो। किसकी ख्वाहिश थी?
अंबिया कराम की ख्वाहिश थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनकर पैदा हों। तो आप और हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने खुश नसीब हैं कि आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मती हैं। दुनिया के तमाम समंदर सियाही हो जाएं, तमाम पेड़ अगरचे खत्म हो जाएं और जमीन का चप्पा चप्पा कागज हो जाए और आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब मिलकर तारीफ लिखना शुरू करें तो तारीफ खत्म नहीं होगी, तमाम स्याही खत्म हो जाएगी, तमाम खल्क खत्म हो जाएंगे। अब उतनी तारीफ जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो रफ़ाना लका ज़िक्रक कहकर कर दी है, तो आपका और मेरा जो है कहना, बेशक हमारी मोहब्बत है हम कह लेते हैं, मगर अल्लाह के सामने हमारा कहना जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया ऐ महबूब मैंने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। तो उतने बुलंद जिक्र में आप तमाम यहाँ शरीक रहे। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने का और आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में कहलाने का, शर्फ पाने का आपने हक अदा किया। समझो हो अगर शायद औलाद तो समझो, बाप को माँ को मोहब्बत की नजर से देखो। उनका दिल जिसने भी तोड़ा, उनका दिल जिसने भी तोड़ा वो कहीं का न रहा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। हमने खा की ये बुजुर्गों की ज़बानी में सुना, अपने चमड़े की उन्हीं जूतियां सिलवा पहना, अपने चमड़े की उन्हीं जूतियां सिलवा पहना। फिर भी हक होता नहीं उनकी मोहब्बत का अदा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। दिल है काबा अरे नादान तू काबे को न ढा। प्यारे आका सल्लल्लाहु को अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी। 6 साल का बच्चा थे आप सल्लल्लाहु अपनी माँ के साथ, बीबी आमीना के साथ सफर करके मदीना मुनव्वरा जाते हैं। आमीना ने यह चाहा कि मेरे सरदार अब्दुल्ला जो मदीना मुनव्वरा में दफन है उनकी जियारत करके आऊं। अपने शौहर की जियारत के लिए बच्चे को लेकर निकले ताकि बच्चे को तो मैं दिखला दूं कि उनके बाप कहाँ हैं। साथ में उम्मे अयमन साथ में थी। जब जाके जियारत करके वापस आ रहे थे तो मकामे अबवा जो छोटी छोटी पहाड़ियां थी उसके दरमियान अचानक ही बीबी आमीना का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल होने लगा तो बीबी आमीना समझ गई कि अब मैं दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन ये मेरा बच्चा, ये मुन्ना, ये मेरा लखन जिगर, इसकी वजह से मुझे कभी तकलीफ नहीं पहुंची। मैं समझती हूँ कि अल्लाह की खास मदद नुसरत इस बच्चे के साथ है, अल्लाह की रहमत इस बच्चे पर है, अल्लाह की रहमत का साया है। तो उन्होंने बच्चे को बुलाकर कहा बेटा मैं जा रही हूँ, मैं अल्लाह के हवाले करके तुझे जा रही हूँ। यकीनन अल्लाह ताला तुझे कभी जाए नहीं करेगा, बेकार नहीं करेगा, तेरी शान को बढ़ा देगा बेटा, तू सब्र करना। ये कह के इंतकाल कर गई। इंतकाल के बाद जब उनकी तदफीन हो गई तो बच्चा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ की खबर से, माँ की खबर से अम्मा तुम मुझको लेकर आए थे, अब मैं अकेला मक्का मुकर्रमा जाऊं, आपको छोड़ अकेला जाऊं, बड़ा दुख आ गया। दुख से आपका दिल भर गया। तो उम्मे अयमन जो खादिमा थी उनको खींच कर खबर से निकाल, जो चिपट गए थे खबर से, और उनको दिलासा देकर तसल्ली देकर मक्का मुकर्रमा ले गई। जब आपने नबूवत का ऐलान किया और फिर आपने पैगाम दिया अखलाक का, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का, तो फिर आपकी जिंदगी के आखिरी वक्त में आप फिर मदीना मुनव्वरा से मक्का आ रहे थे सहाबा इकराम के साथ। तो रास्ते में वो मुकाम भी आ गया जहां उनकी माँ तदफीन थी। सहाबा इकराम का बड़ा मजमा मौजूद था। वहां पहुंचने के बाद
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से बेख्तियार आंसू निकलने लगे। सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कौन सी तकलीफ पहुंच गई कि आप इस कदर रो रहे हैं, जार जार रो रहे हैं? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों, मेरी माँ की खबर यहीं पे है। मैं छोटा बच्चा था तो यही तदफीन हुई थी मेरी माँ की। आज मेरी माँ की बहुत बहुत याद आ रही है। और कहते हैं साहबा से कि लोगों, अच्छी तरह सुन लो, अगर मेरी माँ इस वक्त जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए खड़ा होता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सूरा पूरा पढ़ा हुआ होता, उस वक्त मेरी माँ अपनी जरूरत से मुझे पुकार की आवाज देती कि ऐ मेरे लाल मोहम्मद, तो मैं नमाज को तोड़कर जो है मेरी माँ की आवाज पर लब्बैक कहकर निकल जाता। अल्लाह अकबर। ये माँ का मुकाम और दर्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में, माँ की अजमत। इससे अंदाजा लगाइए कि माँ बाप को दुखी रखकर कोई सुख से नहीं रह सकता। माँ बाप के दिल को तोड़कर कोई अच्छी जिंदगी पनप नहीं सकता। इसीलिए कुरान में, हदीस में यह बताया गया है कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, कभी उनका दिल न दुखाओ। गुलजार की तज़यीन कारी कौन करता है? गुलजार की तज़यीन कारी कौन करता है? तुम्हारी तितलियों नक्शो निगारी कौन करता है? तुम्हारी तितलियों नक्शो निगारी कौन करता है? गुलो गुलजार एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा दावतो हिदायत की एक हंसी शफक लेकर मेरे मुस्तफा कुफर के अंधेरों में नूर का तबक लेकर मेरे मुस्तफा कुफर के अंधेरों में नूर का तबक लेकर मेरे मुस्तफा